नमस्कार। आज के इस नमस्कार। कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सबने महाशिवरात्रि का पर्व बड़े अच्छी तरह मनाया होगा। पिछले हफ्ते महाशिवरात्रि का था त्योहार, जिस दिन हम लोगों ने यहाँ पर किया है अपना ये प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह स्मृति संस्थान. This trust was incorporated in 2018 in memory of Professor Rajendra Singh, Rajju Bhaiya. The trust is involved in the patriotic activities among youth. It is spreading its education for good human being, science population among youth, encouraging science research for rural Bharat, promoting science application for masses. This is the website of the organization. This is the email address and this phone number. Anybody interested can contact on these numbers. This program is sponsored by Rail EduTech Private Limited. This company is having main object to promote courses for employment and upskilling, promotion of railway courses for graduate engineers and diploma engineers, offering big data, cloud computing and cyber security courses from 1st of March. It is going to launch. It is promoting automation courses also and promotion of entrepreneurship programs. This is the website and this is the email address, phone number of the company. This program is also supported by Human Unity Movement. This organization is helping the needy people from all walks of life, protect child and childhood, save environment, help protecting rights of the people, awareness for the legal literacy, counseling for marriage dispute and harassment. This is the email address and this is the phone number. Anybody interested can contact on these numbers. Today we have invited Mr. Hemant Uppal, who will be presenting and teaching the techniques of how to be a winner. Mr. Hemant Uppal is a ex-technical officer, National Institute of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare. He was assistant manager prior to this. He was assistant manager in Directorate of Advertising and Visual Publicity, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. He is a success coach and motivator to many youth groups for photography. He has written a book titled Gateway to Success. He has also prepared an audio CD and cassette on relaxation exercise titled as Gateway to Success. He has a YouTube channel titled Mission Kaveri that broadcasts innovative training sessions on photography, Gateway to Success and travels. We welcome Mr. Hemant Uppal. I'm also announcing one more. He has published several articles in leading newspaper of the country. Along this webinar, I am also announcing some good news for all the participants. Participants are will get the participation certificate and an e-book by Commander Jetli. We can. This is a highly motivating book, and I think it should go to all the children, all the youth, which will guide them for doing good in their life. For this, you need to fulfill the feedback form, which will be given to all the participants after the program is over. From here, I welcome to Mr. Hemant Uppal to take over. Hemantji, please. Thank you, Ajay sir. Thank you. Very good evening, my dear participants. I wish to start with a small note that whole of our life, we got the instructions from our teachers and parents regularly कि यार ध्यान लगाओ, concentrate करो, याद करो, अच्छे नंबर लेके आओ. This is just a small point to explain you कि क्या आज तक कभी किसी ने भी हमको ये बताया कि यार ये concentration क्या होती है, कैसे होती है, memory का process क्या होता है और ये अच्छे नंबर कैसे आते हैं. Now, because of the pressure of this statement, most of us fell into the trap of rote. हमने रटना शुरू कर दिया. उसमें सिर्फ टारगेट होता था अच्छे नंबर लाना, पर अगर हम किसी से कभी कुछ अप्लाइड पूछें तो हमें बहुत बड़ी नो मिल जाती है. और ये पोजीशन कोई बहुत पॉजिटिव, कोई बहुत प्रोडक्टिव और अच्छी पोजीशन नहीं है.
मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि हम कुएं का या ट्यूबवेल का पानी जो इस्तेमाल करते हैं, हमने गौर किया कि सर्दियों में वो पानी गर्म होता है और गर्मियों में वो पानी ठंडा लगता है। सर्दियों में ट्यूबवेल या कुएं का पानी गर्म लगता है और गर्मियों में ठंडा लगता है। क्या आप में से कोई बता सकेगा कि ऐसा क्यों होता है? मैं अपना पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हूँ, आपको कन्विंस करना चाह रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूमिगत जल का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। हमारा जो वातावरण का टेम्परेचर है वो बदलता रहता है। ठंड में जो है टेम्परेचर डाउन होता है और गर्मियों में टेम्परेचर जो है हमारा बाहरी वातावरण का वो बढ़ता है। यही इसका एक मेन रीजन लग रहा है सर हमें। जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया। साउंड आ रहा है। प्रसून ने आंसर किसने दिया? मिस्टर प्रसून ने? जी ओके, थैंक यू। एक मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्यों होता है कि पहाड़ के ऊपर जब हम जाते हैं, क्योंकि मैं ट्रेवल क्वाइट ऑफन करता हूँ, तो पहाड़ के ऊपर समस्या होती है कि चावल पक ही नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? बाकी के पार्टिसिपेंट्स भी प्लीज अटेम्प्ट जरूर करें। पहाड़ के ऊपर जब हम चावल पकाते हैं तो चावल पकता नहीं है। एनीवे, इसका आंसर हमें ये पता है और हमें बताया गया था कि जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी गिरना शुरू हो। अब हाइट के ऊपर, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो वहां पर हमारा पानी का जो उबलने का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से नीचे आ जाता है। वैसे नहीं पाता। और अगर पकाना हो तो हमको प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना होता है। प्रेशर कुकर का भी वही प्रिंसिपल है कि जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमारी चीजें जल्दी पक जाती हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल, जो दो दो एग्जाम्पल्स दिए, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की खामियां हैं कि हम लाइफ हमको बताया ही नहीं गया। हमने जो कुछ भी किया वो थ्योरेटिकल किया और उसको रटने की कोशिश की अच्छे नंबर लाने के लिए जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली। चलिए आगे चलते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव के अंदर एक बहुत मेहनती, ईमानदार, इनोसेंट जवान लड़का रहता था। गांव के अंदर उसके पास में रोजगार नहीं था। एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि मुझको जाना चाहिए, गांव से बाहर निकलना चाहिए ताकि मुझे कुछ काम वाम। चलते चलते जंगल के किनारे पहुंचता है तो देखता है वहां पर बहुत सारे पेड़ काट काट के स्टैक किए हुए थे। जो मेहनती लड़का है, गांव का लड़का है, उसके मन में उम्मीद, कैंप के मैनेजर के पास में पहुंच जाता है। टिम्बर कैंप का मैनेजर लड़के की फिजिक, उसके चेहरे से टपकती हुई ऑब्वियस इनोसेंस, ईमानदारी, उसको कहता है पेड़ काटोगे? उसने कहा यस सर। एक उसको सुंदर सी शार्प स्टील की कुल्हाड़ी दे दी, एक नोटबुक दे दी, एक पेन दे दिया कि भैया सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक आप काम करेंगे, पेड़ काटेंगे। 1 घंटे का आपको रिसेस मिलेगा जिसमें आप अपना लंच करिए, आराम करिए, और एक ही कॉपी के अंदर आप अपने रोज का जितना भी आप पेड़ काटते हैं आप लिखते रहिए, उसमें रिकॉर्ड रखिए। जनाब पहला दिन ये लकड़हारे ने पूरे एंथुसियाज्म के साथ में काम करना शुरू किया और शाम जब उसने नोट किया तो मालूम पड़ा 8 पेड़ उसने काट के गिरा दिए थे। वेरी हैप्पी। अगला दिन वही टाइम, वही मेहनत, वही एंथुसियाज्म, सिर्फ 7 पेड़ काट पाया। इट वॉज ओनली 7 ट्रीज। थर्ड डे इट वॉज 6 ट्रीज, द फोर्थ डे 5 ट्रीज, और 10वें दिन जब टिम्बर कैंप का मैनेजर एक सरप्राइज विजिट पर वहां पहुंचा तो देखता है दोपहर के 3 बजे वो लकड़हारा बिल्कुल डिसगस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, थका हारा एक पेड़ के नीचे बैठा है, पसीने से लथपथ था, एक भी पेड़ नहीं काट पाया था। क्या आप में से कोई बता सकता है कि क्या कारण रहा होगा
कि इस लड़के की परफॉर्मेंस पहले दिन के बाद से गिरनी शुरू हो गई कंटिन्यूअसली। उसने धार तेज सॉरी, उसने धार नहीं बनाई, सिर्फ काटने में लगा हुआ था 3 दिन से। ओके 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 ओके, धार। सो Yes. व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? कि धार नहीं बनाई उसने, क्या बट एग्जैक्टली वी आर गैदरिंग फ्रॉम दिस? सर ऐसा भी हो सकता है कि उस काम में उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा हो। बहुत बढ़िया कहा आपने, आपने बहुत बढ़िया कहा। पहले दिन उसने बहुत इंटरेस्ट के साथ किया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट खत्म होता गया, जैसा कि हम लोग का पढ़ाई में हम लोग के साथ होता है कभी कभी। बहुत बढ़िया कहा आपने। दिस इज अवंतिका है? यस सर। अवंतिका जी, वेरी गुड। अवंतिका, मैनेजर ने उस लड़के के कंधे पे हाथ रख के उसको उठाया, लड़का रो पड़ा क्योंकि उसको पता था कि मेरी नौकरी गई। कहता है सर आपके इस जंगल में ना भूत प्रेतों का वास है, कोई पूजा हवन करवाइए, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं पर बिल्कुल भी मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन के मुझे 2 आंसर्स मिले हैं और बाकी लोगों से पूछा जाएगा और भी आंसर्स मिलेंगे, वैरायटी ऑफ आंसर्स जिनकी डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगी। नाउ लेट्स एनालाइज इट। हो सकता है उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया हो काम में। और जो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, ये एक इंट्रोस्पेक्शन है। हमारा अपने काम के प्रति क्या अप्रोच है, या अगर मैं किसी की इंटरव्यू कर रहा हूं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए उसकी एक स्कैनिंग हो जाती है। स्कैनिंग किस तरह की? उसके थॉट्स की, उसकी परफॉर्मेंस की, उसके एटीट्यूड की, कि दिस गाय इज गोइंग टू लूज हिज इंटरेस्ट बाय द पासिंग टाइम, डे बाय डे। दूसरे साहब ने कहा साहब उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार नहीं लगाई थी, उसकी शार्पनिंग नहीं की थी। आई एम सपोर्टिंग हिम। अब टिम्बर कैंप के मैनेजर ने पूछा उस बच्चे से कि भाई ये बता तू एक पेड़ काटने के बाद में कितनी देर रेस्ट करता है? वो बड़े जोश से कहता है सर आराम तो हराम है, मैं तो लगातार काम करता रहता हूँ क्योंकि आप मुझे तनख्वाह देते हैं और मुझे ईमानदारी से काम करना है। मैं कोई रेस्ट नहीं करता, सिर्फ जो रिसेस का टाइम मिलता है उसमें करता हूँ। अब टिम्बर कैंप के मैनेजर ने कहा बेटा एक बार जरा अपनी कुल्हाड़ी उठाना। कुल्हाड़ी उठाई और कहा जरा गौर करो इस पे, ये तो एकदम ब्लंट हो रखी है। वो लड़का हैरान हुआ डेफिनेटली, और जब उससे पूछा गया कि भाई आपने देखा नहीं, कहता सर टाइम ही नहीं है मेरे पास, मैं तो काम में लगा रहता हूँ, टाइम ही नहीं है मेरे पास में। ये जो हैपनिंग है ये हम सब लोगों के साथ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी जिंदगी में हो रही है, या मैं यूं कहूंगा कंटिन्यूअसली हो रही है। हमसे कुछ नया सीखने के लिए कहा जाता है, हम कहते हैं वहां पर टाइम नहीं है। आपसे कहा जाता था भाई ब्रेक ले लो, थोड़ा घूमाओ, साहब टाइम नहीं है। So the moral of the story is we should take a break time to time, and during that break we must sharpen our skills. अगर हमारे स्किल्स शार्पन रहेंगे, जैसे कुल्हाड़ी की धार अगर शार्प रहेगी, डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम रहेगी, मैक्सिमम पेड़ वो काट सकेगा। अगर कुल्हाड़ी ही ब्लंट हो गई, वो क्या करेगा बेचारा, जितनी मर्जी मेहनत कर ले। सो प्लीज take these 2 lessons, two morals from this story, कि साहब हम ब्रेक लेना है और उस ब्रेक में कुछ ना कुछ हमने अपने स्किल्स को शार्पन करना है, कुछ नया सीखना है। दिस इज द मेन कुंजी, द की ऑफ सक्सेस। नाउ आई एम कमिंग डाउन टू माय सेकंड पॉइंट, जिसमें हमने कहा था कि साहब कंसंट्रेट करो, याद करो, अच्छे नंबर लाओ। और हमें किसी ने नहीं बताया आज तक कि याद करना, कंसंट्रेशन और अच्छे नंबर लाना क्या होता है, कैसे किया जाता है। बस जो कुछ चल रहा है ना, तुक्के से चल रहा है, लग गया तो तीर है, नहीं तो तुक्का है। नाउ टाइम वेस्टेज, एक तरफ से हम कह रहे हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं है, दूसरी तरफ से हम बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। कभी आपने गौर किया टाइम वेस्टेज, हम वेस्टेज कैसे करते हैं? 2 तरह के टाइम वेस्टर्स हैं, एक तो है माइनर टाइम वेस्टर्स, दूसरे हैं मेजर टाइम वेस्टर्स। कैन यू प्लीज डिफाइन व्हाट आर द माइनर टाइम वेस्टर्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत छोटी लग रही है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता ही नहीं कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हमारे हो रहे हैं।
और बहुत बार आपने मैनेजमेंट गुरुज ट्रेनर्स को सुना होगा कहते हुए टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग। क्या है गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट क्या है, हमें पता ही नहीं, बस चलता जा रहा है। अब माइनर टाइम बेसिस को हम कोशिश करें डिफाइन करने की। प्लीज आप भी मेरे साथ शेयर कीजिए क्या आपके विचार से क्या हो सकता है माइनर टाइम वेस्टर्स। अनम्यूट कीजिए और अपनी बात बताइए। जैसे This is YouTube खोल लिया, फेसबुक खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, बीच बीच में काम करते करते या पढ़ते पढ़ते जो भी है, तो वो थोड़ा माइनर टाइम वेस्टर्स हो गए। बड़े टाइम वेस्टर्स हो गए जिसके अंदर हमने कोई चीज, मतलब किसी चीज को करना है बट मुश्किल है, उसके ऊपर 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1 महीना निकाल दिया, तो दैट आर बिगर टाइम वेस्टर। प्रोक्रेस्टिनेट, जिस चीज पे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। we will polish this answer. This is quite close to the correctness, but we will polish it. So can I explain? Sorry, yes, सर जो छोटा टाइम वेस्टेज है, माइनर टाइम वेस्टेज में जैसे कि हमें कोई इम्पोर्टेंट काम है तो हम क्या बोलते हैं, अच्छा जैसे इम्पोर्टेंट काम है तो हमने बोला चलो ठीक है, 5 मिनट बात कर लेंगे, तो वो 5 मिनट करके ना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और कोई इम्पोर्टेंट काम है तो जैसे हमने बोला आप इसे कल कर लेंगे, तो वो मेजर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो यही है। आपने ठीक कहा। अब इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए और सबको समझ में आ जाए इक्वली। हमारे घर पास में डेली बेसिस पर बहुत सारी इंटरप्शंस होती हैं। एक इंटरप्शन होगी साहब फोन, एक कंपनी का जनरल मैनेजर है या मैनेजर है या एमडी है, उसने एक फोन रखा है वो भी अपनी टेबल के ऊपर, ताकि बाकी सब लोग अपना फोन पे टाइम वेस्ट ना कर सकें। अब जिसका भी फोन आता था वो श्रीमान जी एक टेलीफोन ऑपरेटर के माफिक फोन उठाते हैं, हमें फला से बात करनी है, वो फला बुलाया जाता है। तो फोन कॉल्स आपके लिए एक बहुत बड़ी इंटरप्शन है, टाइम वेस्टर है। आपने क्या किया, फोन को अपने कब्जे में रखा, एक चीज की बचत कर रहे हैं पर बहुत सारे नुकसान कर रहे हैं। इसके बाद में विजिटर्स, अनफिल्टर्ड विजिटर्स आपके ऑफिस में घुसे रहते हैं एक के बाद एक। आपने कोई रिसेप्शनिस्ट, अपना कोई पीए नहीं रखा, जो विजिटर है सीधा आपके पास में आया था, डेफिनेटली टाइम वेस्ट करके जाएगा वो। हर एक विजिटर तो वर्थ नहीं है ना बात करने के, क्योंकि हमें पता ही नहीं वो किस लिए आ रहा है। इसके बाद मीटिंग्स, आपने देखा बहुत सारी मीटिंग रखी जाती हैं, और जब मीटिंग्स के अंदर ज्यादा लोग होते हैं तब भी कोई डिसीजन नहीं हो पाता और मीटिंग्स भी हमारा टाइम वेस्ट करती हैं। इट मींस वी आर नॉट प्लान्ड। हम मीटिंग्स को जस्ट क्वाइट ऑफन हम लोग मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। अब गौर ये करना है कि क्या वो मीटिंग वाकई में नेसेसरी है, कितने टाइम वो मीटिंग चलनी चाहिए, उस मीटिंग का एजेंडा क्या फिक्स हुआ है। एजेंडा ही फिक्स नहीं होता, माइनर टाइम वेस्टर्स। हम लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग रखते हैं, बट यू नो व्हाट वी आर वेस्टिंग आवर्स। आपके टेलीफोन कॉल्स एक हो गया, दूसरा हो गया, आप बात कर रहे हैं किसी से, बात खत्म हो गई, एक आध मिनट की बात थी, बात खत्म हो गई, फिर उसके बाद में एक स्टेटमेंट आती है और बताओ, और अब वो 1 मिनट जो इंपॉर्टेंट बात थी वो चलते चलते 45 मिनट आपके इस्तेमाल कर लेती है। दैट इज द शेयर टाइम वेस्ट। आप टीवी देखने बैठते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज देखनी है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने गैदर करनी है, वो कर ली, और उसके बाद में अब आप टीवी को देखते बैठ रहे हैं। दैट इज अगेन अ टाइम वेस्टर, माइनर टाइम वेस्टर्स। नाउ लेट अस कम डाउन टू व्हाट इज द मेजर टाइम वेस्टर। अगर हमें कुछ पता हो कि हमने क्या करना है तो हम करेंगे ना। हमें पता ही नहीं हमारे गोल्स क्या हैं, हमने करना क्या है, हमारी आगे अचीवमेंट के लिए हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, दैट इज द मेजर टाइम वेस्टर, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अवर एटीट्यूड एंड नॉट बीइंग टोल्ड कि गोल्स क्या होते हैं, गोल्स को कैसे हमने डिसाइड करना है और उसके हिसाब से टाइम कैसे मैनेज करना है। अब ये गोल्स क्या चीज है, कभी आपने गौर किया व्हाट इज अ गोल? कोई भी अपना एक गोल बताइए प्लीज, सभी पार्टिसिपेंट आंसर दे सकते हैं। अपना अपना गोल बताइए, कोई एक गोल, कोई भी एक गोल जिसको आप समझते हैं कि वो आपका गोल है। सर अभी इस वक्त तो मेरा यही गोल है कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं और आपके एग्जाम अच्छे हो जाए। हाँ, अच्छे हो जाए ताकि मेरा नेक्स्ट जो मुझे करना है उसमें अच्छे से एडमिशन हो जाए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको पॉलिश में कर दूंगा। और बताएंगे?
शुभजीत जी आप बताइए सर, व्हाट इज योर गोल? एनी वन ऑफ द गोल्स प्लीज नरेट। अभी सर जैसे एक तो जैसे बॉडी को फिट रखना है थोड़ा सा, तो उसके लिए मतलब बॉडी फिटनेस पे आई एम वर्किंग ऑन, तो टू गेट फिट एंड इम्प्रूव माय वेरी गुड, स्किल्स। बहुत बहुत बढ़िया। और ये कन्हैया जी हैं शायद लाइन पर। कन्हैया जी आप बताइए। कन्हैया जी अनम्यूट करके बताइए आप, आपका गोल क्या है? कोई भी एक गोल बता दीजिए। सर अभी तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी। और सर मेरा ये प्रॉब्लम है मुझे कि मुझे पढ़ने से ज्यादा सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, और वो मैं सीख नहीं पाता हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक प्रॉब्लम तो है सर- मेरे साथ, मुझसे रटा नहीं जाता। मैं याद करूंगी तो मैं भूल जाऊंगी, अगर उसे थोड़ा सा समझ लिया तो वो दिमाग में रहेगा। यस, वेरी राइट। अभी मैंने आपसे 2 एग्जांपल्स दिए थे कि साहब जमीन के नीचे का पानी जो है वो सर्दियों में गर्म क्यों लगता है और गर्मियों में ठंडा क्यों लगता है। हमारे एक वाइज दोस्त ने बहुत बढ़िया उसको बताया कि एक्चुअली जमीन के नीचे का पानी का टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। सिर्फ बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है, उसकी वजह से हमको ठंडा या गर्म लगता है। आप एक एक वर्ड पे गौर कीजिए, लगता है कहा मैंने, ये नहीं कहा कि गर्म होता है। दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा वो था कि पहाड़ के ऊपर चावल देर से क्यों पकते हैं, या पकते ही नहीं है चावल, बीच में हल्के से कच्चे रह जाते हैं। तो उसका आंसर हमने जोड़ दिया किसके साथ में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में। अब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। खामी हमारे सिस्टम में बहुत सारे लेवल्स पर है। एक तो है हमारी स्टूडेंट के लेवल पर, दूसरी है पेरेंट्स के, तीसरी है टीचर्स के लेवल पे। टीचर्स ने कभी सोचा ही नहीं कि हम बच्चों को विजडम इम्पार्ट करें। टीचर के सामने टारगेट है, एक मशीन के माफी काम कर रहे हैं कि सिलेबस खत्म हो जाए। एंड मी हेमंत कुमार uppal running a small NGO called as Kaberi, and the full form of Kaberi is Teen Action for Behavioral and Educational Reforms in India. मैं बहुत कीन हूं बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को ये बताने के लिए कि जो कुछ भी आप कहते हैं बहुत बढ़िया है कि आप कहते हैं, पर उसको करना कैसे है साहब, करना बताइए। अब हमने गोल्स की बात की, 4 लोगों से बात की। आई एम पर्सनली नॉट सेटिस्फाइड विद एनी वन ऑफ द गोल्स। अब गोल है क्या? गोल है क्या? गोल एक क्राइटेरिया में फिक्स होना चाहिए। वो क्राइटेरिया मैं आपसे डिफाइन कर रहा हूं, अब प्लीज गौर कीजिएगा और हो सके तो उसको लिख भी लीजिएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तब तक नहीं हो सकेगी जब तक आपके गोल्स सेट नहीं हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैंने, जैसे आप लोगों ने आंसर दिया, ऐसे ही मैंने, मुझसे किसी ने पूछा भाई आपका गोल क्या है? मैंने कहा जी मेरा गोल है कि मैं अपने माता पिता का बहुत अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ। क्या ये गोल हो गया? नहीं। अब जब हमने गोल सेटिंग टेक्निक सीखी, वहां पर हमने सीखा कि साहब मेरी मदर की आंख में कैटरेक्ट आया हुआ है, अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर मैं उनकी आंख का ऑपरेशन करवाऊंगा। नाउ दिस इज ए गोल। तो गोल के क्राइटेरिया हैं 6। PPP, पटना पटना पटना, PPP, TFM। मैं माफी चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा PPT वगैरह पे बिलीव नहीं करता। देखो, वी हैव टू इंटरेक्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉट द PPT। सो पहला P कहता है पर्सनल। गोल आपका होना चाहिए पर्सनल। मैं आपका गोल फिक्स नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपका गोल डिसाइड नहीं कर सकते। यू हैव टू डिसाइड योर ओन गोल। फर्स्ट P says the goal should be personal. The second one says it should be positive. मुझे अपनी क्लास में टॉप करना है, या मुझे एक रेस जीतनी है। गोल बना लिया, व्हाट कम में मुझे गोल चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो टॉप कर रहा था मेरी क्लास में उसके नोट्स को एग्जाम से 15 दिन पहले गायब कर दिया। वो बेचारे के पास में स्टडी मटेरियल नहीं था, वो 2nd या 3rd आ गया, मैं टॉप कर गया। मैं बढ़ा नहीं, मैंने बढ़ते हुए को पीछे खींच दिया। इट इज नॉट पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव कंपटीशन। दूसरा, एक रेस होनी थी, तो रेस तो मैं जीत नहीं सकता था, क्योंकि मेरे से आगे दूसरा जो कंपिटेंट था, कंपटीशन जो कर रहा था वो बहुत स्ट्रांग था।
तो जब हम नतीजे पे पहुंचने लगे, एंड लाइन पे पहुंचने लगे, तो मैंने उसकी टांग में अड़ंगी लगा दी, वो मुंह के बल गिर गया, मैं रेस जीत गया। बट आपने गोल तो अचीव किया, बट दैट इज नेगेटिव। गोल हैज टू बी पॉजिटिव। और ये नेगेटिव कंपटीशन रैम्पेंट होती जा रही है हमारी सोसाइटी के अंदर, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो, चाहे वो एजुकेशन लेवल पे हो। इट इज गेटिंग रैम्पेंट। दैट इज नॉट अ गुड साइन। और तीसरा पी बोलता है इट शुड बी प्रैक्टिकल। मैं उस दिन जेटली साहब का वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कोर कंपिटेंस की बात करी थी। तो प्रैक्टिकल इज इट शुड बी पॉसिबल। दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने पर आपको पहुंचने का गोल दिया गया कि आप वहां पहुंचिए, ये डिलीवर करके आइए। अब वहां पर टाइम लगना है एक्चुअली 1.5 घंटा पहुंचने का, और आपने गोल बना लिया कि मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। इट मीन्स दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो गोल आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए, आपकी हदों के भीतर होना चाहिए। दिस इज द 3 P। इसके बाद में आ जाता है TFM बोला ना, T इज टाइम बाउंड। मेरी माँ की आंख में कैटरेक्ट है, अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर मैं उनकी आंख का ऑपरेशन करवाऊंगा। अब ये मेरा पर्सनल गोल है, मैंने अपनी माँ की आंख का ऑपरेशन करवाना है। दूसरा, ये एक प्रैक्टिकल है, डेफिनेटली प्रैक्टिकलिटी की ऑपरेशन हो सकता है, एम्स में हो सकता है या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है। इसके बाद में मैंने देखना है, पॉजिटिव तो है ही है वो, खैर अब प्रैक्टिकल में तो आपने अपनी जेब देखनी है ना, बहुत सारी चीजें हैं। फिर टाइम बाउंड, 1.5 महीने के अंदर अंदर टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अटेंडन आपने गोल डिसाइड कर दिया और कर रहे हैं उसकी इंतजार की हो जाएगा, वो नहीं होगा। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, TFM, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हो सकता है आप जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं वहां पर किसी वजह से ऑपरेशन नहीं हो सका, तो आपने दूसरे हॉस्पिटल में करा दिया। हो सकता है 1.5 महीने में नहीं हो पा रहा, आपने 1.25 महीने में करवा दिया, 2 महीने में करवा दिया। बट थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जीवन मृत्यु का सवाल नहीं हो सकता। और इसके बाद में आ गया मेजरेबल। हमारा गोल मेजरेबल होना चाहिए। जब तक मेजरेबल नहीं होगा आप कैसे करेंगे? कितने पैसे लगेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे ना आप। कितने दिन का माँ को रेस्ट मिलेगा, आप उसकी मेजरमेंट करेंगे। कौन उनको असिस्ट करेगा, मेजरेबल होना चाहिए। इन 6 क्राइटेरियाज में अगर आपका गोल फिक्स हो जाता है, आई कैन वाउच कि 99.9% आप उस गोल को अचीव कर लेंगे। अभी जितने भी गोल्स कहे गए थे सब एट रैंडम थे, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिससे हमको पता चले कि वो वाकई में गोल है और आपको पता हो कि आपने करना क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी सक्सेस इज आपने करना क्या है। और जब आपने करना है तो आप क्या करेंगे, अपने जो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं आप उनके लिए टाइम फिक्स करेंगे हर दिन के लिए। कुछ भी हो जाए आपने वो चीज करनी है, वो एक्शन करना है, जो वक्त आप उसके लिए मुकर्रर करेंगे। मान लीजिए आपने 1 घंटा एक काम के लिए डिसाइड कर दिया, उस गोल की अचीवमेंट के लिए 1 घंटा आप काम करेंगे, टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। और ध्यान रहे, टाइम हमको सबको 24 घंटे मिला है, हम उस 24 घंटे को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। उस 24 घंटे को संभालना इज बेसिकली टाइम मैनेजमेंट। इट्स वेरी सिंपल। अलग अलग गुरुज, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग ट्रेनर्स, कोचेस इस चीज को बहुत 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 बड़े बड़े तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, पर इसमें कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। इसके बाद में अब मैं आपको गोल्स के कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, जस्ट फॉर सम हिंट्स। जैसे तो एक हमारा हो सकता है कि साहब मैं एक लॉन्ग वेकेशन डिसाइड कर रहा हूं, ब्रेक लेने के नाते मुझे अपना बच्चों के साथ में थोड़ा सा टाइम निकालना है, प्ले विद चिल्ड्रन। ये भी उनको क्वालिटी टाइम देने का एक गोल है, क्योंकि उनकी जिंदगी आपके हाथ में है। घर के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करनी है, एक्सरसाइज करनी शुरू करनी है। एक साहब ने कहा था कि मैं अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना चाहता हूँ। तो सर, जब तक आप एक्सरसाइज के लिए टाइम नियत नहीं करते और कुछ भी हो जाए आप उस वक्त में एक्सरसाइज करते हैं,
तब तो वो आपका गोल है। अगर आपने गोल बना लिया, कह दिया और किया कुछ नहीं, तो वो गोल नहीं है आपका और कभी भी अचीव नहीं होगा। इसके आगे हम आ जाते हैं, अपनी अर्निंग्स को कुछ मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मेरे पास EMI है या मुझे और इंप्रूवमेंट कुछ करनी है, तो मैं अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहता हूँ। उधार जो मैंने लिए थे वो मैं चुकता करना चाहता हूँ, ये भी एक गोल हो सकता है। मोर पेशेंट, मुझे बहुत ज्यादा पेशेंस अपने अंदर लानी है, क्योंकि इम्पेशेंस बहुत बड़ा रोग है। एडिशनल एजुकेशन, मैं कुछ और पढ़ाई आगे करना चाहता हूँ। So this is the way, you can fix your goals, जो भी हैं 6 क्राइटेरिया में फिक्स कर लीजिए, उसके बाद में उसको आप काम करना शुरू कर दीजिए। गोल्स को 3 हिस्सों में तोड़ लीजिए। गोल्स के 3 हिस्से में कैसे तोड़ेंगे आप? एक जो बहुत ही ज्यादा असेंशियल है, मस्ट डू, जिसका आपकी जिंदगी पे बहुत लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला है, तरक्की होने वाली है, ग्रोथ होने वाली है, वो रखिए ए कैटेगरी के अंदर, मस्ट डू। बी के अंदर आ जाएंगे डिजायरेबल टू डू, जो हो जाए अच्छी बात है। और सी वो गोल्स हैं जिसमें आप कैन वेट। तो ये डिस्टिंग्विश करना आपके लिए बहुत आसान है कि कौन सा गोल अचीव करने से मेरी ज्यादा तरक्की है। और यहां पर अप्लाई होता है मेरे दोस्तों एक रूल, जिसको हम कहते हैं 80-20 रूल। हमारी पूरी जिंदगी 80-20 रूल के अंतर्गत घूमती रहती है। आप ये देखिए, कुछ 20% एक्शंस ऐसे होते हैं आपके, गोल्स ऐसे होते हैं आपके, जो आपको 80% रिजल्ट्स देते हैं। ज्यादातर लोग 80% टाइम वो चीज करने में गुजार देते हैं जिसमें उनको 20% रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। जैसे कि एक सेल्समैन 20% कस्टमर से अपने 80% सेल्स गोल्स अचीव कर लेता है। अगर आप अपनी वॉशिंग के ट्रेंड को देखिए, अपने वार्डरोब को देखिए, तो आप देखेंगे कि 20% आपके कपड़े 80% टाइम्स धुलते हैं या इस्तेमाल होते हैं, और 80% कपड़े ऐसे हैं जो कि केवल 20% टाइम इस्तेमाल होते हैं, कभी शादी ब्याह में, कभी पार्टी में, कभी किसी खास मौके के लिए। फुटबॉल या हॉकी का मैच चल रहा है, 80% टाइम टुक टुक चल रही है, क्योंकि सब लोग डिफेंसिव खेल रहे हैं। आखिरी 20% टाइम बचने की जब विशल बचती है, तो सबके अंदर एक सनक आ जाती है, एक पागलपन सवार हो जाता है, एक जोश सवार हो जाता है, और उस 20% टाइम के अंदर उस मैच का फैसला हो जाता है। तो अगर आप कोई डेडलाइन चेज कर रहे हैं, जब तक आप अपना टाइम मैनेज नहीं करेंगे, मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, आपकी सक्सेस, आपकी अचीवमेंट ऑफ गोल गारंटी नहीं की जा सकती। और कई बार ऐसा होता है हमारे पास में काम बहुत सारे होते हैं, उसमें से कुछ ना बड़े नेस्टी जॉब्स होते हैं जो हमें पसंद नहीं है। तो जनाब सबसे पहले ना उस नेस्टी जॉब को क्रैक कर दो, उससे मुक्ति पाओ। जैसे ही आप उससे मुक्ति पालोगे ना, आपके अंदर एक जोश आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बला टली और अब मैं बाकी काम बहुत बढ़िया से करूंगा। जिस काम में मजा आता है उसको पहले कर लिया, नेस्टी जॉब है ना, वो करना मुश्किल हो जाएगा। Is it right? Am I able to explain you correctly? Are you convinced with me? Yes, sir. तो सब गोल सेटिंग आपने समझ ली, आपने टाइम मैनेजमेंट समझ ली, गोल सेटिंग होते ही आपकी टाइम मैनेजमेंट शुरू हो जाएगी। अब आ गई बात साहब याद करने की, मेमोरी, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कब डेवलप होती है, डू यू नो? इसके लिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। आपने कभी गधा देखा है? डोंकी बहुत सारा सामान लाद के चलता है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्शन वर्कर या ये सब बहुत सारा सामान लाद देते हैं, वो चलता रहता है, इसलिए उसको गधा भी कहते हैं। पर गधे की एक प्रॉब्लम है, कभी कभी वो रुक जाता है, अटक जाता है, अड़ जाता है, उसको हम कहते हैं गधा अड़ियल हो गया, चलता ही नहीं। क्या करते हैं आप? व्हाट डू यू डू? तो मारते हैं। जब गधा चलता नहीं है तो क्या करते हैं? तो मारते हैं चलने के लिए। आई नीड, यस ऋषिराज, गिव मी द रिस्पॉन्स।
यस सर, वो तो मारते हैं कि हाँ वो आधे चल पाए आधे बढ़े, मारते हैं, ऋषि धक्का आपकी आवाज देते नहीं आ रही हैं। बेटा, प्लीज। हेलो सर, हेलो सर। नो, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। एनीबॉडी एल्स? सर वो कहना चाहते हैं, उनका वो ये कहना चाहते हैं कि उस गधे को हम मारते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। अविंतिका आपकी आवाज पहले बिल्कुल ठीक आ रही थी, अब नहीं आ रही है आपकी आवाज। हेलो, अविंतिका आपकी आवाज बहुत कम आ रही है बेटा, थोड़ा सा उसको माइक के पास बोलिए। सर उसे मारते हैं। सॉरी, डंडा मारते हैं। जी जी। बहुत बढ़िया कहा आपने, डंडा मारते हैं, पर वो नहीं चलता, गधा नहीं चलता। पर उस गधे को चलाना है, क्योंकि सामान उसका हम कम नहीं कर सकते, अपने सिर पे ढो नहीं सकते, और गधे को खींचेंगे तो उससे अच्छा है कि हम ही सामान को ले जाएं। क्या उसके करेंगे? सामने एक गाजर लटका बताइए, दीजिए। कोई तरीका, कोई इंटेलिजेंट रास्ता बताइए, क्या करेंगे? उसके सामने एक गाजर लटका दीजिए, वो गाजर खाने के लिए आगे बढ़ता जाएगा। आवाज सर कैसे कम हो गया? मेरे यहाँ तो वॉल्यूम फुल है। आपका कुछ बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है। हेलो सर बस मेरे यहाँ आवाज फुल है, पर आ नहीं रही है आवाज, जैसे पहले आ रही थी बिल्कुल क्लियर। मेरी आवाज आ रही है? आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज आ रही है पर बिल्कुल ऐसे मुझे कान लगाना पड़ेगा। सर शायद आपके जूम में चलिए एक काम करता हूँ, मैं ही आपको बता देता हूँ क्योंकि आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। तो अब हम उस गधे के सामने एक रसीली गाजर लटका भर देंगे, बस लटकाएंगे। थोड़े स्लो मोशन में चलते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, गधे की आंखें उस गाजर पर अटक जाएंगी जाके। अब वो कहीं नहीं देख रहा, अभी तक तो बेचैन था, आप पीट भी रहे थे उसको। इसको हम कहेंगे साहब उसकी कंसंट्रेशन डेवलप हो गई, और उसके कुछ ही सेकंड के बाद में, कुछ ही क्षण के बाद में वो गधा उस गाजर के पीछे पीछे चलना शुरू कर देगा, और यही आप चाह रहे थे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे आपसे चाहिए कि गाजर लटकाने वाले एक्शन को हम क्या नाम देंगे? सर इंटरेस्ट। अवंतिका दोबारा बोलो। सर कह रही हूँ कि मतलब उस काम को करने के लिए उस गधे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अवंतिका से बेटा। सर मतलब उस गधे के अंदर उस गाजर के लिए इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अब वेरी गुड, वेरी गुड, यू यूज्ड एग्जैक्टली द राइट वर्ड। आपने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। इंटरेस्ट क्रिएट होते ही कंसंट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, और जो आप चाह रहे थे वो रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह से जब हम किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, या हम अपने सबऑर्डिनेट या अपने स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं, से बाय टेलिंग स्टोरी और समथिंग सिली, समथिंग फनी, इन कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है, कंसंट्रेट किया नहीं जा सकता, और जो लर्निंग या मेमोरी का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि शोले मूवी हम सबने देखी है, और शोले मूवी के जो उसके डायलॉग्स थे, कभी आपने रटे, कभी आपने उसकी कुंजी खरीदी थी या कोई किताब ली थी उसको याद करने के लिए, पर अभी भी अगर आपसे शोले मूवी के डायलॉग्स बोले जाए, एक बोला जाए, दूसरा आपके मुंह से अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि उसमें वो इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा वो उसको बढ़ा चढ़ा के गप के तरीके से बताया गया था, एक इंटरेस्टिंग वे में। तो क्यों ना हमारा टीचर हमारी पढ़ाई को इसी ढंग से करना शुरू कर दे, या हमारा बॉस हमारे अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर दे काम करने के लिए, तो उसको फिर बहुत ज्यादा आंखें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय ओवरसीइंग के कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं। वो जो हमारे सिस्टम में जाहिलपंती है, सेडिज्म है, कि मैक्सिमम बॉसेस जो हैं वो सेडिस्ट होते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को परेशान ज्यादा करते हैं, काम कम लेते हैं, इसीलिए अनहैप्पीनेस है, इसीलिए स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज्यादा, एंड दैट्स वी ऑल आर सफरिंग। सो इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी चीजें अपने आप शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब स्टडी टेक्निक्स क्या कहती हैं बेटा?
2.5 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ो, तभी तुम्हारी कंसंट्रेशन बनेगी। बैठते हो चिड़िया की तरह से चोंच मारते हो, फिर उठ के भाग जाते हो, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। ये हमें आमतौर पर यही बताया गया है। विदाउट रियलाइजिंग अ सिंपल साइंटिफिक फैक्ट कि किसी भी इंसान का दिमाग 25 से 30 मिनट से ज्यादा काम नहीं कर सकता। 25 से 30 मिनट के बाद में उसको 10 मिनट की 1/3 टाइम ओवर लर्निंग करनी है। ओवर लर्निंग का मतलब है कि जो कुछ आपने उस आधे घंटे में पढ़ा समझा, बंद कर दीजिए किताब को, सर्फ कर लीजिए अपनी आंखों के सामने उन सब्जेक्ट्स को, उस टॉपिक को जो आपने अभी भी पढ़ा, या एक पेपर के ऊपर मोटे मोटे पॉइंट्स लिख लीजिए, सो दैट इट इज एंश्योर्ड दैट द सब्जेक्ट मैटर इज देयर इन योर माइंड। अब बीत गए 40 मिनट, 20 मिनट आप सब छोड़ दीजिए, वो सब कीजिए जिसमें आपको मजा आता है, चाहे म्यूजिक है, चाहे डांस है, चाहे कोई टीवी है, या कुछ खाना पीना है, या आप उठ के थोड़ा सा मूवमेंट कर लीजिए ताकि आपका शरीर चालू हो जाए। अब 1 घंटा जब जैसे ही बीता, अब फौरन बैठ जाइए अपने टेबल के ऊपर, दोबारा से नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट शुरू कीजिए और करते जाइए इस तरह से 8 सेशन, 9 सेशन, 10 सेशन। आप थकेंगे नहीं, दिमाग आपका हारेगा नहीं, आप रिफ्रेश रहेंगे, और जो कुछ भी आप समझेंगे जानेंगे वो आपके लिए सॉलिड हो जाएगा। 30 मिनट के बाद में दिमाग की हालत एग्जैक्टली वो हो जाती है जो एक लंगड़ी टांग, 2 टांग से चलता हुआ इंसान 1 टांग से चलना शुरू कर दे तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस तो गिरेगी। तो 25 से 30 मिनट के बाद में इंसान के दिमाग की यही बेचारे की हालत हो जाती है। सो वो 2.5 घंटा 3 घंटे वाली फिलॉसफी को छोड़ दीजिए, समझा दीजिए अपने पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी कि साहब ऐसा नहीं होता है। ये वीडियो रिकॉर्ड होगा, यूट्यूब पे आएगा, यू कैन डेफिनेटली शो देम, क्योंकि वो भी नहीं कर पाते काम। पेरेंट्स हमारे क्या करते हैं, ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, चाय मंगा लेंगे, चाय कब मंगाते हैं जब उनका दिमाग थक जाता है। जो स्मोकर्स होते हैं वो जाते हैं एक सुट्टा मार के आ जाते हैं वापस, हाँ जी फ्रेश हो गए। Why to spoil your health? Why to spoil your system while you know what is the fact? But unfortunately, मैंने जिस बात से बात शुरू की थी, करो करो करो, पर कैसे करो किसी ने नहीं बताया। उसी कंफ्यूजन में पूरी जिंदगी बीत गई। और ये इंफॉर्मेशन या ये विजडम, ये फैक्ट्स हर एक स्टूडेंट, पेरेंट और टीचर के लिए मैंडेटरी हैं। अब डिपेंड ये करता है, क्योंकि हम इस काम को कॉमर्शियली नहीं कर रहे, विद कॉमर्शियल माइंड नहीं कर रहे, हम ये काम मिशन के तहत कर रहे हैं। हमको बच्चों से मोहब्बत बहुत है, हम चाहते हैं कि हर बच्चे तक ये विजडम पहुंचे और हमारा हिंदुस्तान चेंज हो जाए। अब आ गया साहब रीडिंग टेक्निक्स। कई लोग क्या करते हैं, बोल बोल के पढ़ते हैं। बोल रहे हैं, अरे भैया बोलोगे, बोल के पढ़ोगे तो दिमाग में घुसेगा। आई एम सॉरी। कुछ लोग अपनी पेन या पेंसिल का एक किनारा अपने टेक्स्ट के ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर रख के ऐसे ऐसे करके पढ़ते रहते हैं। कुछ लोग चलते हुए पढ़ते हैं, चलते रहेंगे, आगे पीछे टू एंड फ्रो करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। साहब एक चीज बताइए, क्या आपके दिमाग की स्पीड के साथ में कोई भी चीज कंपीट कर सकती है? नहीं कर सकती। इसलिए जब भी आप रीडिंग करें, नॉवल पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? यू रीड वेरी रैपिडली। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यू रीड वेरी रैपिडली। एग्जैक्टली अपने स्टडी मटेरियल को भी रैपिड रीडिंग की आदत डाल लीजिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके टेक्स्ट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 1 या 2 वर्ड्स, उनको अंडरलाइन भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब जब आप पढ़ेंगे, रैपिड रीडिंग करेंगे, एक बात पे गौर कीजिए, आपकी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर एक अर्ज है रीडिंग की, फास्ट रैपिड रीडिंग की। 500 वर्ड्स अ मिनट, डेवलप दैट स्पीड। हम लोग नॉर्मली 100-150 वर्ड्स पर मिनट मैक्सिमम पढ़ते हैं। 500 तक का गोल बना लीजिए, 500 को अचीव कर लीजिए। और जो अंडरलाइन किया है आपने, वो आपके दिमाग में एक फोटोग्राफी मेमोरी डेवलप कर देगा, ऑटोमेटिकली डेवलप कर देगा, क्योंकि कंसंट्रेशन डेवलप्ड है, पढ़ा बहुत तेज रहे हैं। अंडरलाइन वर्ड्स आपके अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे आपके माइंड में। और अब जब आप रिवीजन करेंगे, अब रिवीजन क्या है? रिवीजन या मेमोरी एक ऐसी चीज है जो खत्म होती है, जो डिमिनिश होती है। कोई भी क्यों ना हो, मेमोरी डिमिनिश होती है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये तो सुना ही है हम सब ने, हम भूल जाते हैं चीजें। स्टूडेंट्स के लिए क्या जरूरी है?
to identify the period of the instance of forgetting, failure, memory failure, और उस वक्त में आप मेमोराइज कर दोबारा से रीड कर लीजिए, आपकी मेमोरी इंटैक्ट रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज नोट कर लीजिए, पहली मेमोरी फेलियर होती है 24 आवर्स में, द सेकेंड डे। तो सेकेंड डे तो साहब आपको होमवर्क मिलता ही है स्कूल से, कॉलेज से, आप होमवर्क कर लेते हैं, दैट इज द जो फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ मेमोरी फेलियर है, उसके अंदर आपने उस चीज को ऑलरेडी रिवाइज कर लिया। इसके बाद मेमोरी फेलियर होता है सेवंथ डे। सेवंथ डे के ऊपर दोबारा से रीड कर लीजिए, सिर्फ रीड करना है आपने, टाइम कोई वेस्ट नहीं करना, और रैपिड रीडिंग करेंगे टाइम बहुत कम लगेगा। इसके बाद मेमोरी फेलियर होता है द नेक्स्ट 15th डे। कोई इशू नहीं है, 15 दिनों दोबारा से हम रिवाइज कर सकते हैं। अब हमारी रीडिंग स्पीड भी बढ़ चुकी है, क्योंकि वो चीज हमारी आंखों के सामने से निकल चुकी है। रैपिड रीडिंग की अर्ज हमारे अंदर है। 15th डे पे आपने जब दोबारा रिवाइज कर लिया तो आपकी मेमोरी इंटैक्ट है, अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अवंतिका की प्रॉब्लम थी ना, अवंतिका, मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं, और उम्मीद करता हूं आप चाहे किसी को भी, मुझे, अजय जी को, एक बार रिपोर्ट जरूर कर दीजिए कि वाकई में सक्सेस मिली या नहीं मिली। अगर मिली तो साहब हम बहुत खुश हो जाएंगे। यस सर, ओके सर। और इसके बाद में जो मेमोरी फेलियर होता है वो होता है 1 महीने के बाद में। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने सेकंड डे अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया, पूरा सब्जेक्ट आपने वो उतना टाइम नहीं लगाना, जिस चीज को आपने 45 या 40 मिनट लगाए थे अंडरस्टैंड करने में, क्लास में एक्सप्लेनेशन लेने में, जब आप उसको सेकंड, 6th, 7th और 15th एंड 30th डे पे जब आप करेंगे तो हो सकता है आपको मुश्किल से 2.5-3 मिनट लगे, क्योंकि रैपिड रीडिंग हो रही है, सब्जेक्ट आपके अंदर है ही है, आपने खाली उसको रिकॉल किया, आपने रिवाइज किया। डायरी के अंदर नोट कर लीजिए, या टीचर्स अगर ऐसा करना शुरू कर दें कि 2nd, 7th, 15th और 30th डे के ऊपर अपने बच्चों को अगला सब्जेक्ट, अगला टॉपिक लेने से पहले अगर उतनी रिवीजन करवा दें, उनके बच्चे कभी भी फेल नहीं होंगे, दे विल बी ऑलवेज ऑन द टॉप। और कंपटीशन हो जाएगी 95 से 100% के बीच में, पॉजिटिव कंपटीशन, क्योंकि सभी को अपने सब्जेक्ट आते हैं। अब सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लिखने का तरीका हम शार्पन कर सकते हैं और पॉलिश कर सकते हैं अपना। सो दिस इज स्टडी टेक्निक एंड रिवीजन टेक्निक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे सेटिस्फैक्शन होगी, क्योंकि मैं आपको कन्विंस करते करते हर चीज को बता रहा हूं। मैं आपके ऊपर कोई भी चीज थोप नहीं रहा, मैं कोई भी चीज आपके ऊपर डाल नहीं रहा कि साहब ऐसे ही होता है। अच्छा, आप जब पढ़ रहे होते हैं कितनी बार पानी पीते हैं, खास करके सर्दियों में? दिन का दिन बीत जाता है, 1 या 2 बार पानी पिया तो पिया, नहीं तो वो भी नहीं पिया। डू यू नो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 75% वाटर। और जैसे ही पानी की कमी हमारे अंदर होती है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है, जैसे ही पानी की कमी होती है, एब्सेंट माइंडेडनेस शुरू हो जाती है, डिसओरिएंटेशन शुरू हो जाती है, और आपको ये लगता है कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। पानी पीते रहिए, नहीं भी प्यास लगती तो 2 घूंट मार लो। अच्छा, हम खाते क्या हैं? जब बीच में ब्रेक लेते हैं, क्या खाते हैं? स्नैक्स, केक, पेस्ट्री, कुछ तला हुआ, कुछ फास्ट फूड। बिग नो नो। हैव काला चना भुना हुआ, हैव मुरमुरा। घर पर जो मम्मी खाना बनाती है, आप सिर्फ वही खाना खाइए। ज्यादा ऑयली, ज्यादा घी वाला, ज्यादा मिर्च वाला या ज्यादा मीठा खाना मत खाइए, ये आपके ब्रेन को स्लगिश कर देते हैं। पानी पीते रहिए, बहुत ज्यादा हो गया नींबू ले लीजिए। चाय, कॉफी, कॉफी मैं रिकमेंड करता हूं दिन में 1 कप कॉफी जरूर पीजिए, बिकॉज इट इज गुड फॉर योर लिवर एंड हार्ट हेल्थ। अब ये नहीं कि साहब जब आपका मूड किया तो आप उठे और आपने 1 कप चाय बनवा ली, जब आपका मूड किया आपने कॉफी पी लिया, ठंडी कॉफी पी ली ना। व्हाइट शुगर से बिग नो टू इट। व्हाइट शुगर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा बर्बादी का कारण है। याद कीजिए, जब हम बहुत छोटे थे, या आप जैसे अवनिका अपनी मम्मी से पूछ के देखना, पापा से पूछ के देखना कि जब उनका टाइम था, वो आपकी एज के थे, तो चीनी कैसे मिलती थी? चीनी राशन से मिलती थी, मुश्किल से 1 kg पर हेड पर मंथ। आज की डेट में क्या है? ओपन हो गई। और ये शुगर एंड
जो ये माफिया है, ये सारा उनका गिफ्ट है हमारे समाज को। ऑयल सब खाने बंद कर दीजिए, सिवाय सरसों को तेल के दूसरा कोई ऑयल मत लीजिए। नो रिफाइंड ऑयल, नथिंग। मिर्ची, चीनी, दोनों चीजें कम कर दीजिए। शक्कर ले लीजिए, अगर गुड़ आप वो ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए, शहद ले लीजिए। इट इज वेरी गुड, इट इज डेफिनेटली कॉस्टली, पर हमने सारा दिन बैठ के चीनी थोड़ी ना खाते रहना है। चीनी का एडिक्शन किसी भी नशे से ज्यादा है, ये फैक्ट आप जान लीजिए। चीनी का एडिक्शन अच्छी से अच्छी एडिक्शन से ज्यादा है, और आप रह नहीं सकते, अर्ज होती है अंदर से। व्हाट इज दिस? दिस इज अवर लाइफ, दिस इज अवर बॉडी। हम लोग कहते हैं जी बच्चा पैदा होगा, जवान होगा, शादी हो जाएगी, अधेड़ हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, फिर बूढ़ा हो जाएगा, फिर बीमार हो जाएगा। भाई ये बीमारी कहाँ से आ गई बीच में? बीमारी तो ईश्वर ने हमको दी ही नहीं। वी आर नॉट सपोज टू गेट सिक। आपने किसी जानवर को, पंछी को कभी भी बीमारी से मरते देखा है? बहुत कम। चोट लग जाएगी अलग बात है, पर बीमारी से बहुत कम मरते हैं। कोई वैसे कोई वायरस फैल गया उससे मर जाए एक अलग बात है, पर इंसान का तो नियम है ना, कंडीशनिंग हो चुकी है कि वो 60 साल 55 साल के बाद में बीमार पड़ेगा, फिर दवाइयां शुरू हो जाएगी, फिर मर जाएगा। फार्मेसी, हॉस्पिटल्स, इन सब का एक ये षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है। हम बीमार पड़ने के लिए बने ही नहीं। तो साहब कैसे ठीक रहेंगे? अच्छा, एक स्टेटमेंट मैं और देता हूं। हम बीमार पड़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कुछ चीजें मैंने आपको बता दी, फिर हम फ्राइड खाते हैं, फिर हम पिज्जा खाते हैं, फिर हम चाउमीन खाते हैं, फिर हम समोसे खाते हैं, फिर हम बन खाते हैं, फिर हम ब्रेड खाते हैं। ये सारा प्रोसेस्ड फूड। इवन जो गेहूं की रोटी आप खाते हैं, चावल खाते हैं, दिस इज ऑल्सो प्रोसेस्ड फूड। हर जानवर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स ईट्स व्हाट दे गेट डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। तो साहब आप भी वही खाना शुरू कर दीजिए, डायरेक्टली नेचर से मिलता है। आप जो सीजन का फल है फल खाइए, नट्स लीजिए, बहुत सारे नट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप वो खाइए। आप नींबू लीजिए, आप नींबू के अंदर चीनी डाल के या पैक्ड फूड खाएंगे, और जो जिस फूड के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी है उसको तो घर से बाहर दफा कर दीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक क्या है? क्लींजिंग एजेंट बाबा। रस्ट लग गया, सॉफ्ट ड्रिंक को रगड़ दो, रस्ट निकल जाता है। मैं अपनी गाड़ी की कूलिंग सिस्टम को सॉफ्ट ड्रिंक से क्लीन करता हूँ, क्योंकि एसिड तो डल नहीं सकता उसमें, सॉफ्ट ड्रिंक से क्लीन करता हूँ, कभी गाड़ी गर्म ही नहीं हो सकती। तो हमने वो सब चीजें अडॉप्ट कर ली जो हमें फोर्स कर रही हैं बीमार पड़ने के लिए। मतलब हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, भाई पैसे से ही तो आती है ना चीजें। तो जो चीजें पैसे से आती है उसके लिए मेहनत करते हैं, तो हम बीमार पड़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और वजह बल्ले बल्ले किसकी हो रही है? फार्मेसिस्ट की। आप मेडिकल शॉप में चले जाइए, बंदा खुश हो जाता है, इतनी दवाइयां बिक रही हैं, इतनी दवाइयां बिक रही हैं कि जिसकी कोई था नहीं है। अजय जी कितना वक्त रह गया हमारा? और अभी 10 minutes. अजय जी 10 minutes. ओके, अब आ गई स्पेलिंग्स याद करने या मेमोराइज करने की। 1.5 घंटे में मैं आपको 16 घंटे का मटेरियल बिल्कुल ऐसे कॉम्पैक्ट करके दे रहा हूं। मेमोरी कैसे होती है? हमें ऐसा क्यों कहा जाता? ए फॉर एप्पल। मतलब जो ए बोला जाता था, तो एप्पल हमें दिखता था, पिक्चर को हम देखते हैं, हमारी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। एक स्पेलिंग मैं आपसे पूछूंगा। एक तो अजय जी कितना वक्त रह गया? 20 minutes, 20 minutes. 20 Hello? minutes, 20 मिनट्स। हाँ, ओके यार, ये पता नहीं कि वॉल्यूम को क्या हो गया दोस्त। ये आपका Anyway, बैंडविड्थ लो है actually. assassination is मर्डर ऑफ ए सेलिब्रिटी या कोई पॉलिटिकल लीडरशिप। assassination, इसके स्पेलिंग बहुत ट्रिकी हैं। आप लिखने की कोशिश कीजिए बिना गूगल किए, आप देखेंगे वाकई में बड़ा ट्रिकी सा है। मैं आपको बताता हूँ स्पेलिंग को याद कैसे अभी हो जाएगा। और अगर आपके घर में आपका कोई छोटा भाई बहन है, कोई छोटा बच्चा, आप उसको भी ये याद करा दीजिए, उसको याद हो जाएगा। और कहना बेटा कल जाके टीचर से पूछना स्कूल में अपनी, कोशिश कर लीजिए आप लिखने का।
अब मैं असैसिनेशन को आपको याद करवा रहा हूं और आपको याद होगा। अवंतिका, मैं बहुत माफी चाहता हूं, सचमुच में मुझे सुनाई नहीं दे रहा और कारण मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अभी मैं इसको डिस्टर्ब करूं, हमारा टाइम वेस्ट होगा। आप कल्पना कीजिए एक गधा, एस एस के पीछे एस खड़ा है, गधे के पीछे गधा खड़ा है। लिखिए एस। उसके पीछे मैं, गधा, गधे के पीछे गधा, उसके पीछे मैं, और मेरे पीछे पूरा नेशन, NATION, assassination. You can never forget this spelling, never. This is the success of converting words, text into pictures and then memorizing it. आपको कभी भूलेगा नहीं। अब हम लाइट के, जब हम उसकी बात करते हैं कि लाइट के अंदर कितने, व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। Am I right? Yes. एक एग्जांपल और भी है। ये जितने भी आपके ग्रह हैं, इनको आप कैसे याद करेंगे? एक सिंपल सी लाइन है, माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट शोड अस 9 planets। हो गया। माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट शोड अस 9 planets। जो हर वर्ड का पहला अक्षर है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। खाना खाने के बाद में आधा घंटा एक पावर नैप जरूर लीजिए। रीजन बहुत सिंपल है कि जब आप खाना खा लेते हैं तो आपकी मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो जाके लग जाती है खाने को पचाने में, वो एनर्जी, ताकत वो लग जाती है खाने को पकाने में। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। अगर आपने आधे घंटे का नैप को अब आ रही है आवाज रोक रोक के आ रही सर, क्लियर नहीं आ रही। मैंने एक्चुअली एक बार वो जिसके ऊपर साइन की आवाज भी ठीक आई है इसके बाद। यस, आई एम गेटिंग योर वॉइस नाउ। वही आ रहा था शायद। अभी ठीक आ रही है ना आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अब आपकी आवाज भी आ रही है फॉर्चुनेटली। अच्छा हुआ, मैं बड़ा अकेलापन महसूस कर रहा था। ओके सर। तो अच्छा, इनमें से अगर कोई बात हमने जो करी है, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? कोई क्यूरियोसिटी हो रही हो कि ये सब क्या क्या करते जा रहे हैं, क्या बोलते जा रहे हैं? हेमंत जी एक बार खत्म कीजिए तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे हम लोग। सर आप चलते रहिए साथ में, कोई इशू नहीं है। चलिए हम खत्म कर देते हैं, आप शुरू कीजिए। जी नहीं आप अपना पूरा सेशन खत्म कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग 10 मिनट का सेशन रखेंगे क्वेश्चन आंसर का। मैंने आपसे अर्ज ये किया कि हमारा सेशन तो जब तक आप चाहेंगे चलता रहेगा। बेहतर ये है कि अगर कोई पार्टिसिपेंट्स की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो वो साथ साथ क्लियर कर ले, बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव देम विद एनी डाउट। चलिए ठीक है बच्चों, कोई चीज पूछनी है तो बताओ। ऐसी कोई चीज जो लग रहा हो कि कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए या समझ में कम आया, आप रिपीट करना है कोई चीज? जो बताया उसके अलावा भी कुछ पूछेंगे अपनी जिंदगी के बारे में, आई विल डेफिनेटली सेटिस्फाई यू। सर क्वेश्चन ये है सर, जैसे पढ़ाई में मन भी कम लगता है सर पढ़ते पढ़ते, और फील्ड में ज्यादा समझ में आता है सर काम। मेरे दोस्त, ये बात तो आपने साबित कर दी ना कि लिखी हुई चीज इंटरेस्ट आना मुश्किल होता है, इसीलिए आप लिखी हुई चीज को प्रैक्टिकल करके देखिए। आपने कहा ना फील्ड में मजा आता है। अब जो हमने 12th पास करनी है साहब, वो तो एक मजबूरी है, हमने 12th क्लियर करनी है। 12th क्लियर करने के बाद में आपका जो इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट है आपका, वहां पे विचार मत कीजिए, किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि गोल्स
आपकी जिंदगी के आपके हैं, मेरे नहीं है, आपके फादर के नहीं है, और उस काम में लग जाइए। जैसे ही आप उस काम में लगेंगे, उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, मुझे तो पढ़ाई वढ़ाई का था, बिल्कुल नहीं था। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। प्राउड से कह रहा हूँ कि मैं 10th में फेल भी हो गया था। यस सर। 11th जैसे तैसे करके पास की। तब हमारे टाइम पे 76 में 11th 12th का सिस्टम नहीं था। 11th करने के बाद मुझे इंटरेस्ट था फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। हमने सीधा जाके इलाहाबाद प्रिंटिंग कॉलेज में एडमिशन ले ली। नतीजा क्या हुआ, पहले यूनिट टेस्ट से ही हमने टॉप करना शुरू कर दिया, और 3 साल के बाद में गोल्ड मेडलिस्ट बन के वहां से वापस आए। 79 में डिप्लोमा पूरा किया था। 79 के बाद में हमने कोई 1.25 साल प्राइवेट नौकरी की। उसके बाद में हमें सरकारी नौकरी मिल गई। 40 साल सरकारी नौकरी की। इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें हमको कोई मात दे सके। हम जाते थे वो तुरंत सर आवाज ही नहीं आ रही, कभी आ जाती क्लियर नहीं। हो क्या रहा है, क्योंकि आई न्यू माई सब्जेक्ट। तो इंटरेस्ट सब्जेक्ट को आपने पकड़ना है। 12th तक तो जैसे तैसे करके आप इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए, रट के नहीं, और आप देखना कामयाब हो जाओगे। और बीच में अगर कोई इश्यू होता भी है आपके साथ में, तो आप हमसे फोन पर बात भी कर सकते हैं। मैं आपको डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जीवन का मिशन ही अपनी नई जनरेशन को स्ट्रेंथन करना है। हम कोई भी तरीका निकालेंगे, आपको उस चीज से बाहर निकाल देंगे। ठीक सर, थैंक यू सर। पर पूछना आपका काम है। देखिए, बिना आप सर आवाज ही क्लियर नहीं आ रही, मैं आपसे तो मैं आपके मन की बात नहीं समझ सकूंगा। कॉल से ही बात कर सकते हैं सर, ऐसे आवाज ही नहीं आती, कभी आ जाती है कभी नहीं। सॉरी सर आवाज नहीं आ रही है, कॉल से बात करके मैं आपको बता दूंगा। कॉल पे बात कर लीजिएगा, कॉल पे बात कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। कीजिए, आपका नंबर से हम कीजिए लोग को व्हाट्सएप पे। नंबर हम लोग आपको ग्रुप में दे देंगे, आपके जी, ग्रुप में हम नंबर दे देंगे आपको। थैंक ये यू। अजय प्रॉब्लम, ये अजय जी अपने आप कर देंगे आपकी हर एक शंका का समाधान। थैंक यू। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल भी दे देंगे, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो है एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर। हमारा बिहेवियर और हमारा एटीट्यूड ही सब कुछ डिसाइड करता है इस दुनिया के अंदर। ये जेटली साहब ने उस दिन बहुत ज्यादा एम्फोसिस किया कि आपके ज्ञान से ज्यादा आपका एटीट्यूड जो है, एप्टीट्यूड से ज्यादा एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी तो साहब मन विचलित हो जाता है ये बात सुन के, पर इसमें कहीं सत्य भी है। आप ये बताइए कि जब भी हमारे साथ में कुछ होता है तो हम रिएक्ट करते हैं ना। कई बार तो हम सुनते ही केवल रिएक्ट करने के लिए हैं, सामने वाले ने बात खत्म नहीं की, हमने रिएक्ट कर दिया। उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आपने अपने एक किचन मशीन बाजार से खरीदी है, इलेक्ट्रिक शॉप से आपने किचन मशीन खरीदी। वो किचन मशीन आप लेके आए घर, खुशी खुशी अपने दोस्तों को बुलाया, चलो यार आज हम मैंगो शेक बनाएंगे, मैंने किचन मशीन बनाई है। मैंगो शेक बनाने लगे, मशीन को हमने ऑन किया, मशीन खुद कर गई। हाँ निधि बोलो। निधि आपने हाथ उठाया, बेटा बताओ। निधि अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए निधि को हम अटेंड कर लेंगे। तो मशीन आपकी फूक गई, अब आप क्या करेंगे? अब 2-3 स्थितियां बनती हैं, वो 2-3 स्थितियां मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। आपने वो मशीन उठाई और लेके पहुंच गए दुकानदार के पास में। दुकानदार ने पूछा आपसे, पहले तो खुश हुआ कि बाबूजी आ गए, एक और कस्टमर कुछ और खरीदेंगे, बड़े खुश हुए। और जैसे ही आपने कहा कि साहब ये मशीन आपकी ले गया था, ये फूक गई है सरकार, तो उसने क्या किया, पर्ची लाए हो, कैश मेमो, आपने कैश मेमो निकाला। कैश मेमो पे लाल रंग के अक्षरों से लिखा हुआ था, बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, बिजली के सामान की कोई गारंटी नहीं। आप मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं अपना चार्जर ले आऊं क्योंकि इसमें बैटरी बैठ रही है। गिव मी 1 सेकंड।
Yeah, I'm sorry for the interruption. जी, तो उसने एक तो पर्ची पे आपको बता दिया था, लिखा हुआ है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, बिजली के माल की कोई गारंटी नहीं है, और उसने ऊपर बोर्ड भी दिखा दिया आपको, उस पे भी यही शब्द लिखे थे। अब आप क्या करेंगे? एक तो ये है कि मन महसूस के आप वापस आ जाएंगे घर कि नहीं यार, इसमें तो वाकई में ठीक लिखा हुआ इसके ऊपर, तो मैंने क्या ध्यान नहीं दिया। अब आप वहां पर सिर्फ रुकिए, थोड़ी देर सोचिए। अगर उसने आपको 6,000 रुपए की मशीन बेची है, तो कोई ये तो है नहीं कि उसने आपको कोई कागज का टुकड़ा दिया था, उसने आपको पूरी मशीन दी थी, मशीन में कोई डिफेक्ट था, मशीन खराब होगी, आपका अधिकार है कि वो जो है उस मशीन को ठीक करे, आपको दूसरी मशीन। आप जो चाहते हैं वही कहिए, और एक ही बात कहिए, दूसरी बात नहीं कहनी। आई वॉन्ट माई मनी बैक। वो आपकी तरफ देखेगा, आपका मखौल उड़ाएगा अरे भाजी क्या बात करते हो, हमने भी तो रोटी खानी है, वगैरह वगैरह। आप वहां से हिलिए नहीं, ना तो गुस्सा कीजिए और ना ही आप उसकी बात को मानिए, कुछ मत कीजिए। आप गुस्सा नहीं करना, आपने चिड़चिड़ाना नहीं, और ना ही आपने उसकी बात ऐसे गरीब जैसे मान लेनी है। कुछ मिनट बीतेंगे, वो बेचैन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उसके काउंटर पे खड़े हैं और काउंटर के ऊपर आपकी मशीन ने उसकी जगह घेरी हुई है। वो फिर आता है आपके पास में, साहब जी आपसे कह दिया ना कुछ नहीं हो सकता। आपने एकदम रियलाइज किया कि यार ये जो लिखा है ना, ये कैश में ये तो इसी ने छापा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ी ना छापा है, और ये बोर्ड भी इसी ने लगाया है, और अगर ये लिख सकता है, ऐसा लिख सकता है, तो ये अदरवाइज भी लिख सकता है। तो आपने कन्विंस कर लिया अपने आपको कि आपका अधिकार है कि ये मशीन चेंज होगी, आपकी यहाँ आपको पैसे वापस मिलेंगे। तो आपने उससे कहा आई वांट माय मनी बैक। अब ये बंदा भड़बड़ाता आपके पास में आता है, गुस्सा भी नहीं कर सकता क्योंकि दुकानदार है। अब ये आपसे क्या कहता है कि साहब आप एक काम करो, इस मशीन को छोड़ दो, मैं ठीक करा दूंगा, मेरा नुकसान ही सही, मैं ठीक करा दूंगा आपको। अगर आपको चलता है तो आप मान लीजिए, और आपने क्या डिसाइड किया था? आई वॉन्ट माई मनी बैक। आप एग्जैक्टली यही शब्द बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे नहीं 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 मुझे ये नहीं, ये मंजूर नहीं है, सिर्फ कहिए मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अब ये बंदा और परेशान हो जाएगा, अपने मुंडू से कहेगा यार कैसे कैसे घाक आ जाते हैं, जो साथ में उसके असिस्टेंट होता है, ये तो हमें रोटी भी ना खाने दें, वगैरह वगैरह। चिढ़ रहा है पर गुस्सा नहीं दिखा सकता बिकॉज ही इज अ शॉपकीपर। और कहीं आपको अगर गुस्सा आ गया और आपने कहीं एक आध झापड़ उसको जड़ दिया, तो सारे दुकानदार खड़े हो जाएंगे इसके सपोर्ट में, आप अपनी टूटी मशीन लेके और बेइज्जती करा के घर जाएंगे। नाउ दिस फेलो इज कमिंग बैक टू यू आफ्टर फ्यू मिनट्स, ही इज टेलिंग साहब आप इस मशीन को दीजिए फेंक, मैं आपको नई मशीन दे रहा हूँ। अगर आपको चलता है तो आप मान लीजिए, नहीं चलता फिर वही स्टेटमेंट दीजिए, आई वॉन्ट माई मनी बैक। नाउ दिस फेलो इज टोटली फ्रस्ट्रेटेड। आता है लौट के आपके पास, फिर कहता है सर 1 महीना पहले ना इस मशीन के साथ में एक स्टीम प्रेस फ्री आ रही थी, गिफ्ट आ रही थी कॉम्प्लीमेंट्री, मैं आपको वो प्रेस भी देता हूँ, नई मशीन भी दे देता हूँ, आप साथ जाइए। अब आपको अगर चलता है तो आप उठाइए, धन्यवाद करिए, घर जाइए। नहीं चलता, अगेन यू से आई वॉन्ट माई मनी बैक, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। ये बंदा अपने बाल नोचने पे उतारू हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी तो नहीं कह रहे उसको सिवाय एक ही बात के, वो आपको पैसे 6,000 रुपए गिन के वापस करेगा, और ऐसे करके हाथ जोड़ेगा कि साहब जी आपके ऐसे कस्टमर आ गए, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। और आप तो अपनी जगह जायज थे ना, आपको कन्विंस करना है अपने आप को कि आपकी डिमांड नाजायज तो नहीं है, वो आदमी कहीं आपके अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा। सो जिस केस में आप उस मशीन को घर उठा के ले आते हैं वापस, ये सोचते हुए कि मैं तो बेचारा, सेल्फ पिटी की फीलिंग आ रही है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, बताओ मशीन खरीदी 6,000 रुपए मिट्टी हो गए मेरे। जहां आपने उसको थप्पड़ जड़ दिया या गाली निकाल दी या ऊंचा बोल दिए, वहां पे वो आपका बिहेवियर हो गया एग्रेसिव। पहला बिहेवियर इज पैसिव, द अदर बिहेवियर इज एग्रेसिव। दोनों में ही फेलियर है, आप सक्सेस नहीं होंगे। ये जो तीसरा बिहेवियर हमने आपको बताया, जिसमें आप एक ही स्टेटमेंट को दे रहे हैं बार बार, आई वॉन्ट माई मनी बैक, दिस बिहेवियर एटीट्यूड इज कॉल्ड एज असर्टिव बिहेवियर। और ये जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है, इसको टेक्निक को कहते हैं ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। आपने तो पता नहीं एलपीस देखे होंगे, वो जो तवे होते थे हमारे, रिकॉर्ड्स होते थे, उस पर सुई वाला एक हैंडल रखते थे, फिर उसमें कुछ आवाज आती थी। जिन लोगों ने वो देखा है उसमें गौर किया होगा, कभी कभी उसमें उसकी जो ग्रूव होता था वो कट जाता था या टूट जाता था,
तो रिकॉर्ड एक ही चीज को बार बार बोलता रहता था। तो आपने ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक अडॉप्ट करनी है, असर्टिव बिहेव करना है। असर्टिव बिहेवियर में सिवाय खुशी के और विन विन सिचुएशन के कुछ भी नहीं है। मानव अधिकार यहीं से शुरू होते हैं, यहीं पर खत्म होते हैं। उसको किसी भी लेवल पे देख लीजिए। घरों के अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू होती है, लड़कियां, बेटियां या औरतें ऐसा ही करेंगी, चाहे उनको टॉर्चर हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, पर वहां पे स्वीकारता आ जाती है, कंडीशनिंग हो चुकी है। आपने अपने अधिकारों को और दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हुए खुद सोचना है, खुद डिसीजन लेना है कि जो मैं बात कहने जा रहा हूं क्या वो जायज है, एथिकल है। आप देखेंगे हम विन विन सिचुएशंस में एंटर करना शुरू कर देंगे अपनी लाइफ में। और अपने आसपास आप देखिए कितने अधिकारों का हनन होता है। ऑटो वाले के पास में गए, भाई साहब चलोगे, जैसे कि पता नहीं वो राजा बैठा हुआ कहीं पर, वो भी पांव पे पांव रख के बैठा होता है, नहीं जाऊंगा। आप कुछ मत करिए, आपको पता है इसको परमिट मिला हुआ है हमारी खातिर, ये गाड़ी पब्लिक व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल नहीं है। आप गाड़ी के अंदर बैठिए, ऑटो को इंस्ट्रक्शन दीजिए मीटर डाउन करो। वो पूछेगा कहाँ जाना है, मीटर डाउन करो। फिर पूछेगा कहाँ जाना है, मीटर डाउन करो। इज्जत से बोलना है आपने, वो मीटर डाउन करेगा, फिर आप उसको बताइए कहाँ जाना है। अदरवाइज ये लोग ना तो किसी मरीज की इज्जत करते हैं, ना ही ये किसी गरीब की इज्जत करते हैं, ये सिर्फ एक्सप्लॉइट करते हैं। और हम एक्सप्लॉइट करके घर वापिस आते हैं, फिर ये कहते हैं यार मेरे साथ तो गलत हो गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसकी हमारे बिहेवियर या हमारी जो को एग्जिस्टेंस है, जो सोसाइटी में हमारी लिविंग है, हमें असर्टिव बिहेवियर अगर आ जाए, हमारी कंट्री एकदम सुधर जाएगी। क्योंकि ना तो हम तब किसी को रिश्वत देंगे, ना ही हम किसी से रिश्वत लेंगे, ना ही हम कोई नाजायज बात करेंगे, ना ही उम्मीद करेंगे, ना ही किसी से कुछ नाजायज काम करवाएंगे। हमारी दुनिया, हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा। एटीट्यूड, असर्टिव, पैसिव, एग्रेसिव। पैसिव एग्रेसिव को बिल्कुल भूल जाइए। एग्रेसिव में हमको ये लगता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पैसिव में लगता है जी महाराज, ये हजूर, जय हो। नो, ये हमें सिखाया गया है, ये सब हुआ है हमारे साथ में, इसलिए वो हमारी रगों में घुस चुका है। अब जो हमारी नई जनरेशन है उसको ये बात समझनी है, उसको समझाई जानी है। इसीलिए मैंने इस मिशन का बीड़ा उठाया है कि हम किस तरह से अपने बच्चों को स्ट्रेंथन कर सकें। जी, आई थिंक आई एम ओवर फॉर द टाइम गिवन। अजय जी, यस, आगे। तो आप लोगों में से किसी को कोई सवाल और पूछना है तो आप बताएं। कोई चीज डिस्कस करना चाहते हैं, कोई अपनी बात कहना चाहते हैं, अपना फोन म्यूट करें, अनम्यूट करें। सर जब ज्यादा पढ़ाई करते करते डिफरेट हो जाते हैं तो उस समय क्या करना चाहिए हम लोगों को? यस सर। हेलो हेलो सर। हाँ, सुन रहे हैं सर। सर का थोड़ा बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है। सर बोल रहे थे कि जब हम लोग ज्यादा पढ़ते पढ़ते हम लोग अगर बोर हो जाते हैं तो उस समय हम लोग तो क्या करना चाहिए? हेमंत जी, हेमंत जी का स्क्रीन ब्लैकआउट हो रहा है, जस्ट वेट। हेमंत जी, जी जी, मैं दूसरे कमरे में आएगा जहाँ पे वाईफाई लगा, शायद मेरे यहाँ वीक ना हो। हाँ आपका बहुत वीक है, आपका ये बहुत वीक है जी जी सिग्नल, इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ भाई, जी। रिपीट करो अपना सवाल ऋषिराज। सर बोल रहे थे कि जब हम लोग पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं तो उस समय हम लोग तो क्या करना चाहिए? मेरे दोस्त, मैंने बहुत इलाबोरेटली बताया था कि 25 से 30 मिनट से आगे आप पढ़ाई नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, 25 से 30 मिनट पढ़ाई करने के बाद में आप 10 मिनट जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उसको रिपीट कीजिए। रिपीट करने का तरीका क्या था कि या तो आप आंखें बंद करके सर्फ करेंगे उसको,
और यहाँ पेपर के ऊपर उसके 2-3 पॉइंट्स, जो नोट्स जिसको कहते हैं ना, एक एक वर्ड, एक एक उसका पॉइंट, ये टॉपिक था, ये था। उसके बाद 20 मिनट वो सब कुछ करो जिसमें तुम्हें मजा आता है, बिना किसी म्यूजिक। बाहर निकलना है बाहर निकल जाओ, टीवी का कोई चीज देखनी है टीवी देख लो, पर सिर्फ 20 मिनट। ये 20 मिनट है ब्रेक, इसमें आपका बुद्धि, आपका दिमाग, आपका मूड दोबारा से जाएगा। पानी पीजिए, कुछ चने, कुछ गुड़, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जो घर में बनी होती हैं वो ले लीजिए, पानी पी लीजिए, क्योंकि एब्सेंट माइंड होता है जब आप पानी नहीं पीते, मिस कर देते हैं पीना, आप पोस्टपोन कर देते हैं पानी को पीना। आप कैसे, आपका मूड नहीं टिकेगा आप फिर बताइए। पर लगातार मत पढ़िए कि आपने सोचा था मैं तो 1.5 घंटे बाद ही उठूंगा, अब बैठा हूं तो उठूंगा नहीं ना जी। थैंक यू सर। और कोई? सर आवाज आ रही? हाँ बोलो बोलो। सर पढ़ते टाइम फील्ड में माइंड चला जाता है। अब ये लगता है कि फिर पढ़ने में भी मन नहीं लगता, कि जैसे जिस चीज के बारे में पढ़ो किसी में फील्ड के बारे में, तो फिर लगता है कि वही काम करो, फिर पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, फिर बोरिंग सी होती है। तो कहते हैं कि बेटा मैंने आपको इस चीज का आंसर पहले भी दिया था कि पढ़ाई किसी को भी अच्छी नहीं लगती। आपने पढ़ाई को किसी भी तरीके से इंटरेस्टिंग बनाना है। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक एग्जांपल है, असैसिनेशन के स्पेलिंग याद नहीं होते, रटते रटते दिमाग खराब हो जाता है। आप उसको पिक्चर में चेंज कर दीजिए ना, गधा गधे के पीछे गधा, उसके पीछे मैं, मेरे पीछे पूरा नेशन। जिंदगी में नहीं भूलेगा, आपको प्रेशर भी नहीं डालना पड़ेगा अपने दिमाग के ऊपर। और छोटे छोटे ब्रेक्स लेके छोटी छोटी ड्यूरेशन में पढ़िए, और ये मन में एक बार धारण कर लीजिए कि भैया मुझे जब तक 12th पास नहीं करूंगा तब तक मैं अपने इंटरेस्ट के फील्ड में भी जा नहीं पाऊंगा। और मुझे मजदूरी नहीं करनी, मुझे एक लेबर करना है। नहीं 12th तो ये जो बच्चे हैं ये सब 12th पास हैं ऑलरेडी, डिग्री में है सर, लेकिन वहां भी जाते हैं तो कॉलेज में भी काम नहीं कराते हैं सर फील्ड में। वो भी कहते हैं बस पढ़ लो, ऐसी प्रैक्टिकल कराते हैं तो बस कॉपी पे करा दिए बस। हम चाहते हैं अगर हमारे राष्ट्र की ये बदकिस्मती है तो हमें रास्ता तो खुद निकालना होगा ही ना, क्योंकि जिंदगी तो हमारी है, उनका क्या जा रहा है। सर हम जब पढ़ते थे क्लास के अंदर रफ नोट्स बनाते थे, घर में वापस आके फाइनल नोट्स बनाते थे, फिर चाहे हम इंटरनेट को रेफर करें चाहे उसके लिए कोई रेफरेंस बुक को रेफर करें, पर अपने नोट्स हम अपने तरीके से बनाते थे। इसीलिए हम गोल्ड मेडल लेके आ गए ना। इंटरेस्ट तो हमारे को था। अब इंटरेस्ट आपको जिस सब्जेक्ट में है उसके अंदर आप अपनी मेहनत खुद कीजिए। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम वाकई में तबाह हो रहा है, पर हम उससे ब्लेम देके तो छुटकारा नहीं है ना, जिंदगी तो हमारी खराब होगी। हमको ब्लेम नहीं देना किसी को भी, हमको रास्ता निकालना है खुद, हम क्या कर सकते हैं खुद ही। और घबराना नहीं है। कभी ऐसी स्थिति होती है फोन कीजिए नहीं यार, आपको मैं उससे काउंसलिंग करूंगा, आपको तरीका भी बताऊंगा, ये हम आपसे वायदा कर रहा हूँ, अकेला नहीं छोड़ूंगा। बच्चे बन गए। थैंक यू सर। पर ऐसा होगा, कोई अचरज वाली बात नहीं बता रहे आप। यस सर। डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर ओपी चौधरी। अपना नोट रखिए भाई। और किसी का कोई सवाल? सर ये होता है कि इंटर तक जो हमारे टॉपिक जो हमने डीपली अच्छा पढ़े हुए हैं, फिर जो सब्जेक्ट आपने टॉपिक इंटर तक डीपली पढ़े हैं, ये होता है ग्रेजुएशन में आते हुए फिर हमारा वो टॉपिक पर जो कमांड होती है वो कमांड कम हो जाती है। इसका क्या रीजन रहता है सर? पकड़ नहीं पाया आपकी बात। नहीं, जैसा कि उसका जो इंटरेस्ट है वो हमारा इंटरेस्ट कम होता चला जाता है, इसका क्या रहता है रीजन?
इंटरेस्ट को मेंटेन करना, इंटरेस्ट को डेवलप करना, ये हमारा काम है। हमको कोई ना कोई डिवाइस करना पड़ेगा, तरीका, जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट हमारा उठ जाए। कोई उदाहरण, मुझे सब्जेक्ट का उदाहरण दीजिए, क्या है सब्जेक्ट? जी, जैसे मैथ में था कि मैथ में मेरा इंटर तक रहा है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ यूपीए बोर्ड में। फिर अभी ग्रेजुएशन में क्या रहा कि मेरा वही पासिंग मार्क्स के थ्रू रहा है बस। अच्छा, आप एक काम और कीजिए, आप एक क्वालिटी प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स में कामयाबी का सिर्फ एक दौर है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आप क्वालिटी प्रैक्टिस कीजिए। अजय साहब इस बात पे बोलेंगे, क्योंकि कल ही मुझसे ये बात कर रहे थे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो वहां पे इन्होंने बहुत बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया था। अजय जी, मैं चाहूंगा प्लीज आप उस शब्द को एक बार रिपीट कीजिए। व्हाट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट? Practice makes you perfect only when you do the correct practice. हाँ, तो हजूर आपको क्लियर हो गया। अब प्रैक्टिस करते रहिए। मैथमेटिक्स सिर्फ प्रैक्टिस का काम है, पर प्रैक्टिस आप सही कीजिए, आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। और मैं आपकी ये शिकायत सुन के मुझे सच में थोड़ा सा कष्ट भी हो रहा है कि इंटर तक आप बहुत बढ़िया थे। इसका मतलब है कि या तो उसमें कोई चेंज आया जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा, आपकी प्रैक्टिस कम हो गई। तो प्रैक्टिस को सही प्रैक्टिस कीजिए। अजय जी ने बहुत सुंदर बात कही थी और वो मेरे दिमाग में बैठ गई बात, इसलिए मैं आपको रिपीट कर पाया। जी बाकी हम हैं, एक बार दोबारा बात कर लें, कोई इशू नहीं है। जी सर। आप अगर अभी तक आप 10 सॉल्यूशंस निकालते थे एक प्रॉब्लम के, अब आप 20 निकालने शुरू कर दीजिए। टाइम मैनेज कीजिए थोड़ा सा अपना, कि भैया मैंने 1.5 घंटा या 2 सेशन मैंने मैथमेटिक्स पे लगाने हैं, और 25 से 30 मिनट से ज्यादा बैठिए ही मत। ये फार्मूला बना लीजिए कि इससे ज्यादा मैंने दिमाग पे बोझा नहीं डालना। अब जब दिमाग काम करना बंद कर देता है, लंगड़ी टांग चलना शुरू कर देता है, हम उस बेचारे को क्यों ब्लेम करें भाई? हमें पता नहीं था। हाँ, ये हो सकता है हमें पता नहीं था, तो आज पता चल गया, अजय जी की मेहरबानी थी। डॉक्टर चौधरी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, डॉक्टर ओपी चौधरी कुछ कहना चाह रहे थे। जी वो चौधरी साहब। जी सर, नमस्कार सर। दादा प्रणाम। बस बढ़िया है सर। एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ 2 लोग बैठे हुए थे, तो हम चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान आपने नाम लिया, तो हमने फिर वो ऑन भी नहीं हो रहा था, तो हमने चलिए, कहा आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं डॉक्टर साहब? मैं हिंदी से हूँ सर। हिंदी से पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, तो जी। कुछ और कोई किसी का प्रश्न रह गया हो, हेमंत जी से कोई चीज पूछना चाहते हैं? सर अवंतिका। हाँ अवंतिका। ऐसा मेरे साथ होता है कि जैसे मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, तो कोई भी नया टॉपिक रहेगा उसको मैं पढ़ के उसके बाद उनको पढ़ाती हूँ, तो उन्हें समझ में आ जाता है, वो टॉपिक मुझे भी समझ में आ जाता है। लेकिन जब मैं अपना कोई टॉपिक पढ़ती हूँ तो वो मुझे अच्छे से नहीं समझ में आता। हाँ, धीरे धीरे करते करते, लेकिन 100% नहीं पहुंचता। जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसे मेरा कोई क्लास का टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक मेरे नया है, मुझे किसी फ्रेंड ने कहा कि ये टॉपिक तो मुझे समझा दो, तो मैं जब उस टॉपिक को अपने लिए पढ़ रही थी तो नहीं समझ में आया। लेकिन जब मुझे उसने कहा कि कल तुम मुझे समझाना, तो मैंने पता नहीं कैसे उसे पढ़ा कि मैंने उसको समझा दिया, तो वो चीज मुझे समझ में आ गई, लेकिन अपने लिए पढ़ा तो नहीं समझ में आई। अवंतिका, ये बहुत मेरे हिसाब से तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप जब आपको मैं थोड़ा सा जोड़ सकता हूँ कि जब आप किसी के लिए नेक काम कर रहे हैं, अब वहाँ स्वार्थ तो कुछ नहीं है ना, तो आप अगर ये तरीका, आप इसी तरीके का अडॉप्ट कीजिए, आप पढ़ा के सीखिए आप। और जब आप पढ़ा रहे हैं ना, तो उसकी जो अप्लाइड है, अभी अप्लाइड का मीनिंग बता देता हूँ। मैं अगर आज अपने बच्चों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिखाऊंगा, तो मैं क्लास में जाके ब्लैक बोर्ड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना नहीं शुरू कर दूंगा। मैं जाऊंगा, पहले बात करूंगा, तो यार मैंने ऐसे गया था, नहीं रखना चाहो 7 डे में नहीं रखना। वहां पर हमने कॉटेज के अंदर किचन भी थी यार। एक बड़ा पंगा हो गया कि जब हम चावल बनाते थे, चावल पकते नहीं थे, मुझे चावल खाने का बहुत शौक है। अब क्या हुआ, हर एक बच्चे ने आपको अलग अलग टाइप के आंसर्स दिए, क्योंकि अब क्या होगा, धीरे धीरे उनकी खिड़कियां दरवाजे दिमाग के खुलने शुरू हो जाएंगे। आप किसी के भी आंसर को
किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी को डिस्कार्ड मत करो। अंत में जब आप ये बात कहो, फिर आप जब बताओगे ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब घटता है तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी घट जाता है। अब आपने पहले करी प्रिपरेशन, इसको कहते हैं प्रिपरेटरी पीरियड। आपने टॉपिक के ऊपर नहीं आए, आप उसके आसपास इर्द गिर्द स्टोरी सुनाते रहे, जिसने आपके भी और बच्चों के मन में भी इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। फिर जब आपने उनको थ्योरी बताई, थ्योरी वो कभी भूलेंगे नहीं, आप तो खैर भूल सकते ही नहीं, क्योंकि खुद आपने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो जहन में घुसेगा ही घुसेगा, बैठेगा ही बैठेगा, क्योंकि आपने टेक्स्ट को पिक्चर्स में, एक वीडियो में चेंज कर दिया। आप कोशिश करके देखो, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जब किसी को पढ़ाते हो और आपको अच्छे से याद होता है, तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, फॉर्चुनेट सिचुएशन है मैं कहूँगा। चलिए, हमारे ख्याल में हेमंत जी इसको हम लोग अब यहाँ पर एंड करते हैं। फिर हम सर। लोग एक बार सेशन आपका जो है वो दोबारा ऑर्गेनाइज करेंगे। जब भी सर, जब भी। इंटरेस्टिंग सेशन है आपका जी। तो आज हम लोग इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है जी सर, बहुत बहुत Thank you. आपका धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और बच्चों के लिए ये लाभकारी रहे, है ना। अगले सैटरडे को हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है जी, बच्चे हमारे नमस्कार। नमस्कार। हरी जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं सुन रहा था और जो जो प्रश्न आ रहे थे उनके उत्तर में जब तक सोचूं तब तक वैसा ही उत्तर ये हेमंत जी दे रहे थे, तो मुझे काफी प्रसन्नता हुई कि हम लोग सभी एक ही वेवलेंथ पे हैं। नहीं, हेमंत जी बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत दिनों से ये ही इज मेंटरिंग सो मेनी पीपल, सो मेनी यूथ। नहीं, बिल्कुल। तो इनको मैंने देखा और है। जो उन्होंने टीचिंग का एग्जाम्पल जो अवंतिका को दिया, एक्चुअली मैं तो इंडस्ट्री से आने के बाद पढ़ाना शुरू किया था, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण मेरा है, क्योंकि टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जब जो उदाहरण दिया अवंतिका ने, हम जब पढ़ाने के लिए जब पढ़ते हैं, क्योंकि हमको बच्चों को एक्सप्लेन करना है, तो छोटी छोटी स्टोरी से शुरू करते हैं। और इसी तरह से जो एक हमारे एक साथी अभी बता रहे थे कि ग्रेजुएशन में उनको दिक्कत होती है, इंटर तक तो अच्छा किया, तो यही कहूंगा कि आप अपने सब्जेक्ट को डिस्कस करना शुरू कीजिए, चाहे दोस्तों में चाहे टीचर से। डिस्कशन काफी हेल्प करता है। और एप्लीकेशन, घर के एप्लीकेशन, चावल दाल, इनमें खोजिए सब्जेक्ट को, तो बहुत अच्छा। ये तो ग्राउंड रियलिटी आपने हेमंत जी ने डिस्कस किया। एक क्वेश्चन है मेरा कि हमें सबको कुछ ऐसा डिवाइस करना है कि हम हिंदुस्तान के हर बच्चे, हर एक बार पहुंचे, हिंदुस्तान एक अच्छी सोसाइटी कंट्री। कुछ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे लग रहा है सर। फीडबैक लिंक कुछ है क्या? तो सर, शुड वी कॉल इट? आई थिंक अजय जी शायद ऑफ हो गए हैं क्या? नहीं, मेरे ख्याल से हम लोग खत्म कर सकते हैं। हाँ, सर आप अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। या चैट बॉक्स में रुको चैट बॉक्स नहीं आ रहा मुझे नजर बेटा। सर आप बोल दीजिए, हम लिख ले रहे हैं। होल्ड करो। नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है, वो अजय जी कर देंगे प्लीज। आप नंबर बोल दो, आप होल्ड करो एवरीवन, होल्ड कर बेटा। इट इज 9312210958। यूट्यूब भी है मेरा, थोड़ा सा आप देख सकते हो उसमें। क्या बता रहे थे? 9312210958 10958। हाँ जी। ओके, ये देखिए, ये आ गया नंबर।
बेटा जो भी आप लोगों की मैं सेवा कर सकता हूँ मैं हाजिर हूँ बहुत खुशी से। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हम लोग क्लोज करते हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ग्रुप में फीडबैक फॉर्म आ जाएगा, फिल कर दीजिएगा।